Ladies and gentlemen, good day and welcome to the Q3 FY26 Investor Earnings Conference Call for Servotec Renewable Power System Limited. As a reminder, all participant lines will be in the listen-only mode, and there will be an opportunity for you to ask questions once the presentation concludes. Should you need assistance during this conference call, please signal an operator by pressing star, then zero on your touchtone phone. Please note that this conference is being recorded. I would now like to hand the conference over to Mr. Raman Bhatia, the Managing Director of Servotec Renewable. Thank you, and over to you, sir. Thank you. Good afternoon, everyone, and thank you for joining the call. Q3 FY26 marks a clear sequential recovery for Servotec following the disruption and policy-related execution challenges we faced in Q2. Over the last quarter, our focus has been on restoring execution discipline, strengthening manufacturing efficiency, and tightening cost control. These actions are reflected in our Q3 performance, where we saw a strong rebound in revenue and profitability on a quarter-on-quarter basis. Importantly, this improvement has come from the operational execution rather than one-off item. On a standalone basis, revenue increased to 202 crore, EBITDA improved to 27 crore, and PAT stood at 14.7 crore in Q3 FY26. On a consolidated basis, revenue was 212 crore, EBITDA was 28.5 crore, and PAT stood at 15.5 crore for the quarter. The margin improvement reflects better cost discipline, improved product mix, and more efficient utilization of our manufacturing and operational resources. While Q3 represents a meaningful recovery, our focus remains on consistency and predictability, not short-term escalation. We continue to prioritize disciplined execution, operational efficiency, and margin-led growth as we move into Q4. With that, I will hand it over for questions. Thank you. Thank you. We will now begin with the question and answer session. Anyone who wishes to ask a question may press star and one on their touchtone telephone. If you wish to remove yourself from the question queue, you may press star and two. Participants are requested to use handsets while asking a question. Ladies and gentlemen, we will wait for a moment while the question queue assembles. Our first question comes from the line of Prashant Omkar, an individual investor. Please go ahead. हेलो हेलो Yes, जी Prashant, प्रशांत। please go ahead. हाँ सर, नमस्ते सर। आपका और नमस्कार। आपकी टीम का हार्दिक अभिनंदन सर। थैंक यू। सर मेरे 2-3 सवाल थे जी। पहला सवाल है सर, क्वार्टर 3 में रेवेन्यू में जो सुधार दिख रहा है, लेकिन आने वाले क्वार्टर्स में मार्जिन सस्टेनेबल रह गया नहीं सर। जी, रेवेन्यू भी इम्प्रूव होगा और मार्जिन हमें लगता है कि इसके आसपास ही रहेंगे। और यहाँ अगर कोई छोटा मोटा डाउन आया तो वो जो सिल्वर और कॉपर में जो बहुत ज़्यादा उछाल आए हैं उसका कुछ इम्पैक्ट आ सकता है, बट कोई बहुत बड़ा नहीं होगा वो इम्पैक्ट। तो हमें लगता है कि हम इसको संभाल लेंगे। अच्छा ठीक है सर। सर थैंक यू सर। सर एक सवाल है मेरा और खाली, अभी जी। क्वार्टर 3 में जो रेवेन्यू आया सर, उसमें यूवी चार्जिंग सेगमेंट का कितना हिस्सा है सर? इसमें चार्जर्स का जो रोल है वो 10% से भी कम है। अच्छा मेजरली ये सोलर से है। अच्छा सर, आपने जो चीन की कंपनी के साथ कोलैबोरेशन किया है सर बेस के लिए, तो जी। वो प्रोडक्ट कब तक लॉन्च होएगा सर? हम उस पर काम काफ़ी आगे बढ़ा चुके हैं और लिथियम बैटरी का प्लांट ऑलरेडी एस्टेब्लिश हो चुका है। मुझे ऐसा लगता है कि मार्च ऑनवर्ड से उसकी डिलीवरी और डिस्पैचेज आपको दिखनी शुरू होंगी हमारे बिजनेस में। ठीक है सर। सर थैंक यू सर, धन्यवाद सर। जी, थैंक यू। Thank you. The next question comes from the line of Sadagopan Ramesh, an individual investor. Please go ahead. Mr. Ramesh, please go ahead Hello. and kindly unmute your line. Yes, please go Yes. ahead. Hello. हेलो। Yeah, can you hear me? यस, बताएं सर। Yeah.
So, in terms of your plans for this lithium battery and the solar business, can you give us some sense in terms of what is the capacity of this lithium battery business, and how do you see the growth in that business over the next 1 or 2 years? सर लिथियम बैटरी के बिजनेस को हम कोई इंडिपेंडेंटली एज अ लिथियम बैटरी मैन्युफैक्चर नहीं कर रहे हैं। ये हमारा कैप्टिव कंजम्पशन है, बिकॉज हम सोलर में बहुत काम कर रहे हैं, और जो सोलर में काम कर रहे हैं उसके अंदर हमारा बैटरी एनर्जी स्टोरेज काफी यूज होता है, नंबर 1। Okay. तो इट विल बी कॉम्प्लीमेंट बाय डिफॉल्ट, अंडरस्टैंड। तो नंबर 2, हमने इसमें कुछ बैटरीज और डाली हैं जिसको हम कह सकते हैं इलेक्ट्रिक रिक्शा बैटरीज। वहां हमारा जो टारगेट है वो हम टारगेट कर रहे हैं लगभग 5000 बैटरी पर मंथ फॉर नेक्स्ट 1 ईयर, राइट। तो दैट मीन 60,000 एडिशनल बैटरी पैक वी आर प्लानिंग, जो हम ऑलरेडी काम कर रहे हैं उसके अलावा। तो जिसका इम्पैक्ट हमारे बिजनेस में कुड बी मोर देन 100 crore। Okay, so this is for the auto rickshaws, 3-wheelers. यस यस यस, करेक्ट। Okay. So when ये you एक talk एडिशन about है, the okay, बोलिए। ये एक वैल्यू एडिशन है, बट बाकी जो है वो हम एनर्जी स्टोरेज ऑलरेडी कर रहे हैं, ऑलरेडी बैटरी पैक्स हम बेच रहे हैं, और वो सब हमने कैप्टिव कंजम्पशन के लिए इन हाउस स्टार्ट कर दिया है, जो बहुत टाइम से चल रहा है। So when you आपका जो बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम और सोलर की बोल रहे हैं, व्हाट इज द फाइनल आउटपुट यू आर डिलीवरिंग टू द मार्केट? इज इट द सोलर पैनल्स विद बैटरी एनर्जी स्टोरेज, एंड व्हाट इज द काइंड ऑफ कैपेसिटी रेंज इन मेगावाट आवर्स और किलोवाट आवर्स यू आर ऑपरेटिंग इन? सर हम आज भी अगर बात करें तो इसको इन टर्म ऑफ मेगावाट की अगर हम बात करें तो शायद हम कोई 5 से 10 मेगावाट के बीच में ऑपरेट कर रहे हैं पर मंथ एज ऑन डेट। सोलर कैपेसिटी की हम बात कर रहे हैं। दैट इज सोलर मॉड्यूल्स और सोलर पैनल्स। सर मॉड्यूल और सोलर पैनल अलग अलग थोड़ी होता है, एक ही बात तो होती है। अलग कहाँ होता है सर? सोलर मॉड्यूल भी वही होता है और सोलर पैनल भी वही होता है। Okay, so basically that goes into solar power projects. Okay, and this so you are offering ये solar panel और solar modules जो भी है। सर आपका सवाल मैं समझ नहीं पा रहा, आप जानना क्या चाहते हैं? मतलब आप मेरे को थोड़ा सा अगर और फोकस्ड सवाल पूछेंगे तो बेटर रहेगा, बिकॉज इस सवाल से क्या निकलेगा मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। हाँ वही, वो सोलर मॉड्यूल्स और बैटरी एनर्जी स्टोरेज का जो बोल रहे हैं वो सर ये कंसोलिडेट बिजनेस है। सोलर के डिवीजन में आप मुझसे ये पूछें कि हम कहाँ काम कर रहे हैं, तो हम रिटेल चैनल में हम काम कर रहे हैं, हम आज की डेट में डिस्ट्रीब्यूशन में काम कर रहे हैं, हम प्रोजेक्ट्स में काम कर रहे हैं, हम गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स में काम कर रहे हैं। इन सब के अंदर अलग अलग तरीके से हम काम कर रहे हैं। ग्रिड टाइड इन्वर्टर्स के लिए हम काम कर रहे हैं, जिसको हम कहते हैं रूफटॉप, और हम अगर बात करें हम रेलवे के लिए काम कर रहे हैं। इसके अलावा हम एंड यूजर के लिए काम कर रहे हैं, और एंड यूजर के लिए हम साथ में एनर्जी स्टोरेज के साथ भी काम कर रहे हैं। ओके, सो ये 5 और 10 मेगावाट का जो रेंज बोल रहे हैं उसमें कंपटीशन कैसा है, एंड व्हाट इज द काइंड ऑफ ग्रोथ यू कैन एक्सपेक्ट इन द नेक्स्ट 1-2 years? सर कंपटीशन की जब हम बात करते हैं तो ये कहना कि कंपटीशन नहीं है या ये कहना कंपटीशन है, ये दोनों ही बातें अपने आप में कोई मायने नहीं रखती, क्योंकि जहां बिजनेस होता है वहां कंपटीशन होता ही है। हाँ, हम अपना मार्केट शेयर कैसे बढ़ाते हैं इस पे बहुत कुछ डिपेंड करता है। इसके लिए हम लोगों ने सोलर के जो इन्वर्टर्स हैं, ग्रिड टाइड इन्वर्टर्स और हाइब्रिड इन्वर्टर्स, उसकी मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी को हमने काफी इंक्रीज किया है, कॉस्ट को काफी कंट्रोल किया है, और अभी हम लगभग 10,000 प्लस इन्वर्टर्स पर मंथ बना रहे हैं। हमारा टारगेट है हम अगले 3 महीने में 25,000 इन्वर्टर पर मंथ पे पहुंच जाएं। ओके, सो विश यू ऑल द बेस्ट। आई विल कम बैक इन द क्यू। थैंक यू सर। Thank you. A reminder to all participants, you may press star and 1 to ask a question. Our next question comes from the line of Abhishek Kumar, an individual investor. Please go ahead. Yeah, hi, good afternoon, sir, and congratulations for your quarter. Thank you. And sir, my question is, as Servotech is expanding strongly in renewable and EV charging, what are the top 2 financial metrics investors should track to judge where this growth is healthy and sustainable over the next few years? नहीं, थोड़ा सा मेरे को क्वेश्चन और क्लियर कीजिए, मैं समझ नहीं पाया आप क्या जानना चाहते हैं। क्वेश्चन को दोबारा फिर एक बार बताएं मुझे। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि अगले जो सर्वोटेक है रिन्यूएबल और ईवी चार्जिंग में हमें काम करता है, अगले टॉप
जो इन्वेस्टर है टॉप 2 फाइनेंशियल मैट्रिक्स में क्या देखे जो अगले नेक्स्ट फ्यू ईयर तक वो सस्टेबल एंड ओवर रहे? सर ये ना बड़ा ही जो आपका क्वेश्चन है वो आपके पॉइंट ऑफ व्यू से ठीक हो सकता है, लेकिन स्टेबिलिटी जिस भी चीज में आ जाए, जो भी चीजें स्टेबल हैं सर वो इस दुनिया में एग्जिस्ट ही नहीं करती। जिसकी भी दिल की धड़कनें रुक जाए वो मर चुका होता है। तो इसमें प्लस माइनस तो हमेशा रहेगा। आप ये कह सकते हैं कि हम इसको कितना कंट्रोल कर पाएंगे, तो इट विल बी इन कंट्रोल सिस्टम, बट यस इसमें प्लस माइनस होता रहेगा। लेकिन यस जहां पर आप बात कर रहे हैं कि क्या मैट्रिक्स को देखूं, तो सर मेरे ख्याल से इन्वेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू से दो ही चीज देखनी होती है। पहला होता है रेवेन्यू, दूसरा होता है प्रॉफिट। तो वो आपको देखना चाहिए। इसके अलावा अगर आप कहें कि नहीं मैं ये देखना चाहता हूँ कि आप कितने इनोवेटिव हैं या आप क्या कर रहे हैं, तो आपको ये देखना है कि जो हम कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं इन ग्रोथ और इन रेवेन्यू, उसके लिए बैकएंड पे क्या काम चल रहा है। तो बैकएंड पे ये है कि हम अपने आप को मजबूत कर रहे हैं उन चीज़ों में जो इंडिया में बहुत सारे लोग नहीं कर रहे हैं। तो लाइक आई ऑलरेडी सेड इन लास्ट कॉल आल्सो कि हम लोग ग्रिड टाइड इन्वर्टर्स में हमने इसको मेक इन इंडिया कर लिया और हम यहाँ पर बना रहे हैं और हम उसकी प्रोडक्शन कैपेसिटी को इंक्रीज कर रहे हैं। हाइब्रिड इन्वर्टर्स की प्रोडक्शन कैपेसिटी को इंक्रीज कर रहे हैं। और जब हम बैकवर्ड इंटीग्रेशन की बात करते हैं तो बैटरीज इन हाउस हो गई हैं, बैटरी एनर्जी स्टोरेज पे काम कर रहे हैं। इसके अलावा जो बहुत बड़ा काम कर रहे हैं वो हम डेटा सेंटर पे काम कर रहे हैं। दैट मीन्स रिमोट मॉनिटरिंग सिस्टम जो गवर्नमेंट की न्यू नोटिफिकेशन आई है इन दिसंबर 2025, वी आर वर्किंग ऑन दैट। सो वो डेटा लॉगर्स और रिमोट जो मॉनिटरिंग सर्वर है वो इंडिया में हम डिप्लॉय कर पाएं और मोबाइल ऐप्स और वो सारी चीजें हम लॉन्च कर पाएं ताकि हम एक बहुत बड़ी मार्केट को कैटर कर पाएं। इस पे बहुत सीरियसली काम कर रहे हैं हम लोग। ओके सर, ओके। जो इसको नीचे की तरफ गिरने नहीं देगी, इस ग्रोथ को। दैट मीन हम फ्यूचर फोरकास्ट करके विजुअलाइज करके उस पर काम करने की कोशिश कर रहे हैं। ओके सर, थैंक यू। थैंक यू। Thank you. A reminder to all participants, you may press star and one to ask a question. The next question comes from the line of Deepika Sharma, an individual investor. Please go ahead. Hello, sir. हेलो। Sir, congratulations on your Q3 results. थैंक यू। And I just want to know that काफी encouraging results रहे हैं आपके Q3 के. I just want to जी। know कि Q3 में आपका क्या मोमेंटो कंटिन्यू होता दिखेगा और हमारा फिस्कल ईयर क्या रिकॉर्ड हाई पे क्लोज होगा? रिकॉर्ड हाई तो नहीं कहूंगा, लेकिन हाँ इसके आसपास ही रहेगा। और ऐसा होने की वजह है कि जो हमने भी एग्जीक्यूशन और जो दूसरे प्लान बनाए हैं वो सबको एग्जीक्यूट करने में और एक लाइन पे आने में अभी Q1 तक चले जाएंगे हम फाइनेंशियल ईयर 26-27 में। बट ये जो Q4 रहेगा वो भी बेहतर रहेगा और उम्मीदों के हिसाब से ठीक ठाक रहेगा। और अगर हम बात क्वार्टर तो इट विल बी बेटर देन लास्ट ईयर क्वार्टर। ओके ओके। वन मोर क्वेश्चन आई हैव। जैसे मैंने न्यूज़ देखी थी आपकी, दुबई में आपने सब्सिडरी ओपन करी है, तो आई जस्ट वांट टू नो कि यूएई में ईवी एडॉप्शन बहुत फास्ट है, तो हम वहाँ जो हमारे एसी और डीसी चार्जर्स हैं वहाँ डिप्लॉय करने वाले हैं, क्या उसके लिए हमने वहाँ की लोकल अथॉरिटीज या किसी बड़े डेवलपर्स के साथ टाई अप करने का कुछ सोचा है, साइन करना है कुछ? क्या वहाँ की मार्केट स्ट्रेटजीज रहेंगी? थोड़ा सा मैं और क्लैरिटी देता हूँ आपको। दुबई की या यूएई की जो मार्केट है ना वो बहुत बड़ी नहीं है। तो ये एक छोटी सी गलतफहमी है। जो अच्छा है आपने एक सवाल पूछा तो इन्वेस्टर्स को भी क्लियर कर दूं। यूएई में सब्सिडरी एस्टेब्लिश करने का जो मेन लॉजिक है और जो मेन वजह है वो है कि हम लोग वहां से दुनिया की और अलग अलग कंट्रीज को कैटर करना चाहते हैं। दैट इज अ प्लान, जिसमें यूएई भी एक मार्केट होगी या जीसीसी भी एक मार्केट होगी। तो हम वहां से और कंट्रीज को भी हम टैप करना चाहते हैं, जिसमें एक बड़ा रिलीफ अब मिल गया है। जो हमारा ये मानना था कि वो यूएस ने जो टैरिफ वगैरह लगाए थे वो यूएई के साथ नहीं थे, उसका हम फायदा लेना चाहते हैं। प्लस बहुत सारी कंट्रीज के साथ उनके जो एफटीएस हैं और जो एग्रीमेंट्स हैं उन सबका भी बेनिफिट लेना चाहते हैं। तो हमारा प्लान थोड़ा सा इससे और बड़ा है, जिसके लिए हो सकता है अगले साल 2 साल और लग जाएं। दूसरी बात, उसको हम ग्लोबल प्रोक्योरमेंट हब भी बनाना चाहते हैं। जितना भी हम ग्लोबली प्रोक्योर कर रहे हैं वो सब इंडिया के लिए भी वो कंपनी ही हमारे लिए करेगी, तो दैट हम कॉस्ट इफेक्टिव हो जाएं और हमारी परचेजिंग कॉस्ट नीचे आए। तो दैट इज अ प्लान। तो थोड़ा सा बड़ा है प्लान इस सबके मुकाबले। ओके 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 सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू।
The next question comes from the line of Mahesh Waze, an individual investor. Please go ahead. Yeah. First of all, congratulations on great results. आप अगर थोड़ा जो ईवी चार्जर मार्केट है इंडिया का, उसका जी। अभी क्या स्टेट है, जो टेंडरिंग हुआ करता था, जिसमें वी हैव बीन क्वाइट सक्सेसफुल इन द पास्ट, और अभी थोड़ा टेंडरिंग का एक्टिविटी कम हो गया, तो थोड़ा उसका अगर उस पर प्रकाश डाले, उसको डिस्कस करें थोड़ा। सर ऐसा है, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो ईवी चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है ना, इट इज अ पार्ट ऑफ अ होल इकोसिस्टम। इस होल इकोसिस्टम के अंदर जब बात करते हैं तो एक आता है इलेक्ट्रिक गाड़ियां। इलेक्ट्रिक गाड़ी होनी चाहिए, अगर वो होगी तभी चार्ज होगी। दूसरा होता है चार्जर, चार्जर चाहिए ताकि गाड़ी चार्ज हो पाए। तीसरा होता है बिजली, इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी हो ताकि उससे गाड़ी चार्ज हो पाए। चौथा है इंफ्रास्ट्रक्चर, ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर जो इन सबको आपस में जोड़ पाए। तो अभी इंडिया में इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके काफी सारे इश्यूज हैं, जिसको गवर्नमेंट ने भी महसूस किया। इसलिए फेम 1, फेम 2, फेम 3 जो पॉलिसी थी जिसमें इंसेंटिवाइज किया जा रहा था इस सबको, उसको रोक के वो पीएम ई ड्राइव योजना ले आए। पीएम ई ड्राइव योजना जो है वो ये है कि भाई इंफ्रा की प्रॉब्लम है, हम सब्सिडी दे भी देंगे तो आप चार्जर लगा के करोगे कि आपको बिजली का कनेक्शन तो मिलना नहीं है, तो आप इंफ्रा डेवलप करो। तो अगर आप इंफ्रा डेवलप करेंगे तो हम आपको सब्सिडी देंगे। तो गवर्नमेंट इस मॉडल में चली गई। अब इस मॉडल में पीपीए मॉडल डेवलप होंगे आने वाले टाइम में, और उस मॉडल के अंदर ही शायद चार्जर्स इंस्टॉल होंगे या इस टाइप का चार्जिंग इंफ्रा डेवलप होगा, जिसमें अभी थोड़ा सा टाइम लगने वाला है। तो इसलिए इसमें डिले है। और अच्छी बात यह है कि ये जो डिले है, हम उसके लिए बैठ नहीं सकते, बिकॉज हम धंधा कर रहे हैं, हम किसी का इंतजार नहीं कर सकते, क्योंकि हमें तो इन्वेस्टर्स को भी, अपने एम्प्लॉयज को भी और अपनी कंपनी को भी फीड करते रहना है। इसके लिए हम लोगों ने अपने आप को रीफोकस किया, and we have totally focused on solar as on date, and with the new innovative plans. But number 2, still we are looking very very seriously कि जब भी वो मौका आएगा तो हम उस दिन उस टेक्नोलॉजी के साथ और उस तरीके की जरूरतों के हिसाब से जरूर तैयार रहें, जिस पे हम कुछ काम कर भी रहे हैं। मैं एक और चीज आपको बता देता हूँ, इंफ्रा के लिए हम लोगों ने एक प्रोडक्ट रेडी कर लिया है, जिसमें हम कम पावर अगर हमें कहीं से मिल रही है तो उस शॉर्टेज के बावजूद हम बड़े से बड़े चार्जर से बड़ी गाड़ी चार्ज कर पाएं। इस तरीके की टेक्नोलॉजी पे हमने कुछ काम कर लिया है और इसको हम कुछ जगहों पर डिप्लॉय करने जा रहे हैं बहुत जल्दी। ओके, थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट। थैंक यू। Thank you. A reminder to all participants, you may press star and 1 to ask a question. The next question comes from the line of Gaurav Singh, an individual investor. Please go ahead. Hi, good afternoon, sir. Good afternoon. First of all, congratulations for such great results. My question was around Mahesh's questions only, that we आपका EV and particularly solar. Last Q2 में there were almost no updates on EV या फिर ऐसे कोई tender, but there were many updates on the solar tenders and the order book that you had. But इस particular quarter में I was going through your IP and all, so there are almost no projects for EV and for solar. So is there a particular reason for that, या फिर what is the plan for that? Because अभी government is pushing on solar panels as well, and even e-drive, and there has been Purvodaya Yojana in this particular budget. So what is your plan about that? We are very serious in a channel distribution network और हम उसको डेवलप किए जा रहे हैं। Right now we have more than 4,000 retailers in India, and we are targeting how to take it up to 10,000 retailers in India. We are making every day more than 2 to 3 distributors per day, and even more than that. तो हमारा बहुत सीरियस थॉट है कि हम हर घर तक कैसे पहुंचे, दैट इज नंबर 1। दूसरा हमारा जो प्लान है वो ये है कि, हाँ बोलिए। हाँ जी, कहना चाहता। ओके, दूसरा हमारा जो प्लान है वो ये कि हम इसको एक इस तरीके के इकोसिस्टम की तरह क्रिएट कर पाएं, सो दैट आने वाले 2, 4, 5 सालों 10 सालों तक भी कंपनी को एक डायरेक्टली और इनडायरेक्टली रेवेन्यू जनरेट होता रहे। वी आर वर्किंग ऑन दैट आल्सो, जिसके अंदर हम टीआरसी एंड स्ट्रॉन्ग आफ्टर सर्विस नेटवर्क क्रिएट कर रहे हैं। एंड नंबर 3, जो सोलर पीवी मॉड्यूल्स हैं उसके लिए हमने राइन में इन्वेस्ट किया था। राइन का लास्ट ईयर का जो रेवेन्यू था इट वाज जस्ट 80 करोड़। करंटली दे आर गोइंग टू रीच अराउंड 160 करोड़ आफ्टर आवर इन्वेस्टमेंट, एंड दिस कमिंग ईयर वी आर प्लानिंग
दे शुड रीच अप टू 500 करोड़। तो उसमें जो पैनल है वो पैनल सर्वोटेक की कंजम्पशन वुड बी मोर देन 70-80%। तो इसका मतलब ये है कि हम लोग भी उस दिशा में काफी काम कर रहे हैं और काफी सारे प्रोजेक्ट हैं। रेलवे के लिए हम लोगों ने काम करना शुरू किया है, एक्सपोर्ट हम लोगों ने शुरू कर दिया है, काफी और कंट्रीज के लिए हम प्रोडक्ट और सर्टिफिकेशन वगैरह काम कर रहे हैं उन पे। तो काफी सारी चीजें हैं पाइपलाइन में। Okay. And sir, since you talked about the export and बाकी जो export and countries में हम काम कर रहे हैं, I also read about the Emirates CEO जो आप दुबई में अभी you are going to start or you have already started. So what is that going to work on? उनको सर अभी हमने अकाउंट नहीं किया है, वो सब जो है वो बोनस होगा। हम अभी उनके बेसिस पे अपनी कंपनी के रेवेन्यू को कैलकुलेट नहीं कर रहे हैं, क्योंकि वो सब अभी नई मार्केट है, मुझे नहीं पता वो कितना अभी देगी। अगर उसके बेसिस पे हम कुछ प्लान करेंगे तो शायद हम फेल हो जाएंगे। तो अभी मैं कंक्रीट बातें करना चाहता हूँ। कंक्रीट बातें ये है कि जो बिजनेस आज हम कर रहे हैं उससे ही हम कैसे 40-50% की ग्रोथ नेक्स्ट 1 साल में लाएं, उस पर हमारा काम बहुत सीरियसली चल रहा है और हमें पूरी उम्मीद है कि हम उसमें कामयाब होंगे। और जो हम दूसरी चीजें हमने शुरू की हैं वो सब अगर साथ आ जाती हैं तो वैल्यू एड करेंगी, लाइक लिथियम बैटरी, लाइक एक्सपोर्ट, तो ये सब वैल्यू एड होगा। तो फिर वो हो सकता है कि हम डबल भी पहुंच जाएं। So that is the plan. Okay. And sir, since you've been talking about lithium batteries अभी आपने 3-wheeler segment के लिए लॉन्च की है and the charger नहीं, मैंने जो बोला है वो ये कहा है कि जो हम अपने एनर्जी स्टोरेज और बैटरी पैक्स के लिए ऑलरेडी काम कर रहे थे या हम बाहर से ले रहे थे, वो उसके अलावा वो भी और उसके अलावा भी। ओके, तो उसके अलावा भी आप लिथियम बैटरीज पे सिंस यू बीन वर्किंग, अभी यू लॉन्च द 3-wheeler बैटरी एंड द चार्जर्स, तो 3-wheeler में आपका और भी कोई फ्यूचर के लिए प्लान है, क्योंकि अभी तो इट्स अ बूमिंग मार्केट। सर अभी आने वाले टाइम में उसकी जो मार्केट है वो लगता है लगभग 2 लाख बैटरी पर मंथ हो जाएगी। अगर 2 लाख बैटरी पर मंथ हो जाती है तो प्रोडक्शन होगा। अभी हमने 5,000 बैटरी का प्लान किया है और हम उसको 25,000 बैटरी तक लेके जाना चाहते हैं। ओके, एंड बाय व्हाट टाइम? सर 1 साल बोला ना मैंने आपको, बताया ना 1 साल के अंदर। ओके, 1 साल। ओके जी, ओके सर। Yeah, that was all from my end. Thank you, sir. And thank you, and yeah, a good luck for the future and for what is future. Thank you, sir. Thank you. Thank you. A reminder to all participants, please press star and 1 to ask a question. The next question comes from the line of Ansh Wadhwa, an individual investor. Please go ahead. गुड आफ्टरनून सर। एक्चुअली मेरा क्वेश्चन था, सर्वोटेक का लॉन्ग टर्म विजन क्या है फॉर द नेक्स्ट 5 ईयर? सर सर्वोटेक का विजन बड़ा क्लियर है, प्रोड्यूस ग्रीन टू लिव ग्रीन। हमारी हर एक ईमेल आईडी के सिग्नेचर में एक बात लिखी हुई है और वो ये लिखी हुई है कि हम ऐसे प्रोडक्ट बनाएंगे जो ग्लोबल वार्मिंग को कम करने में मदद करेंगे, और ग्लोबल वार्मिंग को कम करने में जो मदद करेंगे उन प्रोडक्ट को बेचने से जो भी मार्जिन हम कमाएंगे उन मार्जिन से हम पहला हिस्सा इस कंपनी में खर्चेंगे ताकि ये कंपनी और बड़ी हो पाए और बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर हम लगा पाएं। ये पहला पार्ट होगा। दूसरे पार्ट से हम अपने एम्प्लॉइज को और उनकी पर्सनल लाइफ को और उनकी फैमिली को बेटर करेंगे सो दैट वो और बेहतर फील करें। इसमें हमारा एक सपना है और वो सपना यह है कि 2026 खत्म होने तक ये पोजीशन आ जाए कि सर्वोटेक में अगर कोई जॉब देख रहा है लगाए कि मुझे इसमें जॉब मिल सकती है क्या, हम वो एक एटमॉस्फेयर और एक एनवायरनमेंट क्रिएट करना चाहते हैं। ये हमारी चाहत है और हम इस पर बहुत सीरियसली काम कर रहे हैं। इसके बाद जो पैसा बचता है उस पैसे से हम अपने शेयर होल्डर्स का CSR करेंगे, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाएंगे। इसके बाद जो पैसा बचेगा उससे हम अपने शेयर होल्डर्स को इंसेंटिवाइज करेंगे या उनको रिटर्न देंगे। इंसेंटिवाइज शब्द शायद ठीक नहीं होगा, वी विल गिव अ रिटर्न्स। तो इस मॉडल पे काम करने का हमारा टारगेट है और हम ये मानते हैं कि हम इसको इतना बेहतर और इतनी बड़ी कंपनी बना पाएं जिसमें आप लोगों का बहुत बड़ा योगदान है। जो आप लोगों ने हमारे पे भरोसा दिखाया है तभी हम ये कर पा रहे हैं, और आपका ये भरोसा बना रहे हम लोगों पे तो हम और बड़ा भी कर पाएंगे। और जो ग्रोथ हम पिछले 5 सालों में देख पाए हैं या दिखा पाए हैं, इसको हम कंटिन्यू रखना चाहते हैं अगले और 5 साल, बल्कि उसके बाद भी। हाँ जी सर। सर मेरा एक और क्वेश्चन था, क्या हमारी कोई भी अपकमिंग पार्टनरशिप्स है, एक्विजिशंस है या फिर स्ट्रेटेजिक अलायंसेस है जो अभी अंडर कंसिडरेशन हो? बहुत सारी हैं सर, बहुत सारी हैं, और जब जो होती जाएंगी हम आपके साथ शेयर करते जाएंगे।
हाँ जी सर। तुमसे मेरा लास्ट क्वेश्चन था, अभी रिसेंटली में 1 फरवरी को बजट आया, उसका सर्वोटेक फ्यूचर कैसे डिफाइन होता है उसका बजट का? सर सर्वोटेक हिंदुस्तान की एक कंपनी है और हम अभी इतने बड़े तो नहीं हुए हैं कि जिसके ऊपर डायरेक्टली कोई इतना बड़ा इम्पैक्ट आए, ना ही हम इतने बड़े हैं कि जो जिसकी वजह से हम कुछ इम्पैक्ट को चेंज कर पाए। बट यस, कोई भी इम्पैक्ट आएगा तो उसका पार्ट वो हम पे कहीं ना कहीं इम्पैक्ट डालता है। तो जो अभी सिल्वर या कॉपर या गोल्ड में जो डिफरेंसेस आए हैं प्राइजेस के, या जो भी इसके इम्पैक्ट्स हैं, उसका कहीं ना कहीं छोटा मोटा असर हमारे प्रॉफिट्स पे उसके प्रेशर आने वाले हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। बट हम बहुत सीरियसली इस पे काम कर रहे हैं, कॉस्टिंग पे और दूसरी चीजों पे, सो दैट हम उसको मैनेज कर पाएं, और मुझे लगता है हम इजीली मैनेज कर लेंगे। ओके सर, थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू। Thank you. The next question comes from the line of Jitesh Parmar, an individual investor. Please go ahead. थैंक यू सर, बहुत बहुत बधाई आपको रिजल्ट के लिए। सर मैं 2-3 क्वेश्चन थे जो मुझे समझना था। सर हमारा जो बैटरी चार्जर का सेगमेंट है और डिवीजन है और सोलार का, तो ये रेवेन्यू में उसका मिक्स क्या होगा Q3 के लिए और 9 ईयर एग्रीगेट के लिए परसेंटेज? मैंने आपको बताया कि जो ईवी चार्जर का जो पार्ट है वो लगभग 10% के आसपास है करंटली, बिकॉज उसमें काफी बड़ा एक होल्ड बैक है थ्रू द पॉलिसीज एंड अदर थिंग। बट हम लोग बड़ी बसेस के लिए और ट्रांसपोर्ट के लिए काफी काम कर रहे हैं, लॉजिस्टिक्स ट्रांसपोर्ट्स के लिए, तो उसी का कुछ चार्जर में रेवेन्यू आ रहा है। बट मेजरली अगर हम कंट्रीब्यूशन देखें तो वो रेवेन्यू का पार्ट सोलर से आ रहा है। और जब हम बात करते हैं बैटरी का, तो बैटरी इज अ पार्ट ऑफ द सोलर, बिकॉज अकेली बैटरी हम लोग नहीं बेचते हैं, बिकॉज वी आर नॉट अ बैटरी रिटेलर और ना ही बैटरी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। इट इज अ कैप्टिव कंजम्पशन जो हम अपने ही प्रोजेक्ट्स के लिए बनाते हैं, राइट। जब इसमें हम ईवी रिक्शा की बैटरी बेचना शुरू करेंगे तब हम उस सेगमेंट को अलग करके कैलकुलेट करेंगे और हम आप लोगों को डेफिनेटली बताएंगे कि उसका शेयर क्या आ रहा है। ओके सर, मैं इसलिए पूछ रहा था क्योंकि जब पहले हमने बात की तो हमने बताया था कि हमारी कुछ 12,000 डीसी चार्जर की और एक बहुत बड़ी वो हो चुके हैं सर, वो हो चुके हैं, वो ऑलरेडी हो चुके हैं। वो अभी, हाँ सर, 12,010 चार्जर हो चुके हैं, ऑलरेडी कर चुके हैं। ओके, नहीं सर, वो कैपेसिटी अभी हमारी प्रोडक्शन कैपेसिटी को ट्रांसफॉर्म कर दिया, मतलब उसका क्या कंडीशन है फिलहाल? जो क्योंकि हमारी पास डिमांड बहुत कम है, तो वो जो हमारी कैपेसिटी थी उसका यूटिलाइजेशन 0 है। सर किसी भी कंपनी की ना काबिलियत को, मैं अगर हूँ किसी की जगह, कोई एज अ इन्वेस्टर अगर मैं देखूं, तो उसको इस तरीके से नापा जाता है कि कंपनी के पास जो भी कैपेसिटी थी किसी एक काम को करने के लिए, अगर वो प्रोडक्ट हट गया है तो क्या वो उस कैपेसिटी को किसी और दिशा में बहुत कम टाइम में डाइवर्ट करके कुछ और उससे बना पा रही है क्या? इसको फ्लेक्सिबिलिटी कह सकते हैं। इसको कुछ और शब्द भी इसमें होते हैं कि उसकी क्या काबिलियत है कि वो उसको कितने तेजी से डाइवर्ट कर पा रही है कहीं और। तो अगर आप देखेंगे तो ये हम कर पाते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट को बनाते हुए इस बात को उसी दिन ये मान लिया गया कि ये धंधा या तो बहुत तेजी से बढ़ सकता है या रुक सकता है। अगर ऐसा हुआ तो क्या मैं कैपिटल जो मैंने कैपेक्स किया है उस कैपेक्स को वेस्ट करूंगा, या मैं उस कैपेक्स को कहीं और यूज करूंगा, या मुझे उस कैपेक्स को डबल करना होगा। तो इस फ्लेक्सिबिलिटी को पहले से दिमाग में रखा गया था। इसी वजह से हमें और कैपेक्स इस तरीके के नहीं करने पड़े और ना ही हमारा कोई कैपेक्स बर्बाद हुआ है। अगर कल अचानक 25,000 चार्जर्स का ऑर्डर दोबारा आ जाता है इस मार्केट में, तो हमें दोबारा सोचना नहीं पड़ेगा, वो इमीडिएटली हो पाएगा। तो हमारी कैपेसिटी, हाँ सॉरी, बोले बताइए। ये पूछना था मुझे सर कि ये जो चार्जर में जो स्लो डाउन है जो हमने देखा है, उसके लिए आप क्या ड्राइवर दे सकते हैं? मतलब ये गवर्नमेंट एलोकेशन का इश्यू है या फिर इंडस्ट्री का इश्यू है? मतलब आप इसे कैसे देखते हैं और इसमें क्या ट्रिगर हो सकता है कि जिससे इसका जवाब दे चुका मैं फिर रिपीट कर देता हूँ। इसका जवाब ये है कि इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके जो इश्यूज थे उसको गवर्नमेंट ने भी समझ लिया, इसीलिए गवर्नमेंट ने फेम 3 को रोक के पीएम ई ड्राइव योजना लेके आई। पीएम ई ड्राइव योजना का मतलब है कि अब आपको चार्जर के ऊपर सब्सिडी नहीं मिलेगी, अब आपको सब्सिडी मिलेगी इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने में, ताकि आप अपनी कॉस्ट पे इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करें, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबिलिटी के इश्यूज हैं।
दैट इज नंबर 1। दूसरी बात, आपने जो पहले एक सवाल पूछा था, मैं उसके जवाब को और बेहतर एक आम इंसान की भाषा में देने की कोशिश करना चाहता हूं, और वो ये है कि जो हमने कैपेक्स किया था चार्जर्स बनाने के लिए, वो आज कहाँ यूज हो रहा है और वो कैसे यूज होगा। तो मैं इसका बहुत आसान जवाब देता हूं। आपने आज की डेट में शादियों के बैंकेट देखे होंगे, जगह जगह लगे हुए, देखते हैं आप, पार्कों में बड़े बड़े बैंकेट बने बनाए लगे होते हैं जिसमें शादियां होती हैं। आई थिंक आप सबने देखे होंगे। तो आज जब किसी की शादी हो रही है, तो इंटीरियर डेकोरेटर आता है और वो उसके हिसाब से उसको एक महल की शक्ल दे देता है। अगले दिन जब किसी और की शादी होती है तो वो उसको कोई और शक्ल दे देता है। तो ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है जो इंटीरियर करता है, आप ये समझ लीजिए कि सर्वोटेक ने उसको अचीव किया हुआ है, कर लिया। और ऐसे ही हमें कौन से प्रोडक्ट बनाने हैं उसके हिसाब से हम इंटरनली चेंज कर सकते हैं। ये काबिलियत और फ्लेक्सिबिलिटी हम अपने अंदर पैदा कर पाए हैं और हम उसका फायदा ले रहे हैं। ओके, थैंक्स फॉर दैट। सर, हमारा कोई एक्सपोर्ट का अभी फिलहाल रेवेन्यू है हमारे कंट्रीब्यूशन में, मतलब एक्सपोर्ट का कुछ कंट्रीब्यूशन है हमारे रेवेन्यू मिक्स में? सर, मैंने पहले भी आपको कहा, आज भी, कि वो इतना बड़ा नहीं है कि जिसको मैं कोई आपको अलग से बता पाऊँ। वो बहुत छोटा है अभी। तो आप बिल्कुल निश्चित रहें, वो आने वाले टाइम में बहुत बड़ा होगा। ये सच है, हम उससे बहुत सीरियसली काम कर रहे हैं। और मेरा ऐसा मानना है कि अगर कोई भी काम शिद्दत से, ईमानदारी से और मेहनत से किया जाए तो उसके रिजल्ट जरूर आते हैं, और अगर ऐसा है तो इसके रिजल्ट भी जरूर आएंगे। सर, मैं ये कॉन्टेक्स्ट में पूछ रहा था कि हमने पिछले साल या उससे थोड़े पहले हमने यूके में और जर्मनी में जो पार्टनरशिप अनाउंस की थी के इंचार्ज और दूसरे कुछ प्लेयर के साथ, तो वो पार्टनरशिप का अभी फिलहाल क्या स्टेटस है? क्या हम सर, वो जो पार्टनरशिप थी, किसमें डेवलपमेंट है? बता देता हूँ सर। सर, हमने जो की थी, 2 पार्टनरशिप्स आपने देखी थी, एक जर्मनी की थी और दूसरी हमारी जो थी वो फ्रांस से थी। फ्रांस से टेक्नोलॉजी इंडिया आ रही थी और दूसरी जो टेक्नोलॉजी थी वो इंडिया से जर्मनी जा रही थी। इंडिया से जो जर्मनी जा रही थी वो उस पर काम चल रहा है। अभी तक वो कन्वर्जन नहीं हो पाया क्योंकि जर्मन जो है वो बहुत स्लो है, बहुत टाइम लेते हैं प्रोडक्ट को मैच्योर करने में। जहां तक बात आती है फ्रांस से जो टेक्नोलॉजी हम लेके आए थे वो इंडिया में चल नहीं सकती। अगर आप देखें तो उनकी कॉस्ट और जो कंपोनेंट्स हैं वो बहुत महंगे हैं। इंडिया बहुत कॉस्ट कॉम्पिटिटिव है, बेस्ट प्रोडक्ट बहुत कम प्राइस पे चाहिए, तो वो सूट नहीं कर पाया है। इसीलिए हमने उसके कुछ और रास्ते निकाले और हम उसको अचीव करके आगे बढ़ चुके हैं। ओके सर। सर, मेरा लास्ट क्वेश्चन है, ये हमने जो प्रोडक्शन कैपेसिटी की बात की बैटरी के लिए 5 to 25 और उसके आगे जो हमारा विजन है ओके टू 2 लाख, उसके लिए हमें कितना कैपेक्स चाहिए होगा? स्पेशली ये ईयर में कोई कैपेक्स की जरूरत है फॉर टू अचीव 25,000 बैटरी कैपेसिटी, या फिर दैट इज इंटरनल ऑलरेडी कवर्ड अंडर एग्जिस्टिंग बेसिकली प्लांट सेटअप? नहीं, इसके अंदर कुछ डेट आ रहा है और कुछ इंटरनल एक्रूवल्स हैं, उन सबको मिला के ये हो जाएगा। अभी हमारा जो प्लान है वो बैटरी और सबको लेके लगभग 50 करोड़ का और है, जो मुझे लगता है इतने में हम काम कर लेंगे। और वो अगर बैटरी हम नहीं भी करते तो भी हम करते हैं, क्योंकि हमें अगले 5 साल के लिए प्लानिंग करनी है, तो हम उस पर काम किए जा रहे हैं। तो लगभग 50 करोड़ रुपए के आसपास का बियर मिनिमम इन्वेस्टमेंट हम अभी और करेंगे। बिटवीन 50 to 100 आप पकड़ लीजिए, बिकॉज हाँ जी, उसमें इक्विटी रेवल्यूशन की जरूरत पड़ेगी या दैट वुड बी ऑल इंटरनल अप्रूवल? इसके ऊपर आज जवाब नहीं दे सकता। उसकी वजह है अभी 1 फरवरी हुआ है और अभी बजट्स रोल आउट नहीं हो पाए हैं। अभी उसको और ये महीना लगेगा तो ज्यादा क्लियर पिक्चर आ पाएगी मेरे पास। Okay, sir. Thank you very much, sir. I'll get back into the queue for my other questions. Thank you. Thank you. Thank you. Participants, you may press star and 1 to ask a question. Our next question comes from the line of Meet Mehta from Prasoon Exponential. Please go ahead. Yeah, am I audible? जी। हाँ, मुझे ये पूछना था कि what exactly do you do in battery energy storage system? Like आप assembly करते हो या are you manufacturing some products in that? And second question is from is Kusum scheme. तो अभी बजट जो आया है तो उसमें are you expecting more execution in the industry compared to the last year? जी सर, जहां तक एक बार आप सवाल दोबारा रिपीट करेंगे? मैं माफी चाहता हूँ, मेरे से स्किप हो गया। एक बार सवाल रिपीट कर दीजिए प्लीज। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम। थैंक यू। मैं वापस आता हूँ, मैं समझ गया। सर, बैटरी एनर्जी स्टोरेज में जो भी
लिथियम बैटरी के सेल्स हैं वो उसका मेजर रोल होता है, राइट। दैट इज प्योरली इम्पोर्ट, वो कोई भी नहीं बनाता इंडिया में आज की डेट में, चाहे वो कोई भी कंपनी हो, कोई नहीं बनाती है, सब इम्पोर्ट होता है। तो सेल्स हम इम्पोर्ट करते हैं। इसके बाद आता है BMS, फिर होता है EMS, उसके बाद होता है सर्वर। तो सर्वर हम लोगों ने अपने डिप्लॉय कर दिए हैं, जो मैंने पहले ही बताया है, उस पर हम काम कर रहे हैं। EMS, energy management system, is a part of the server apps also, and there is a BMS and the container, not a container, battery racks that we are making in India and we are assembling it here, and along with the PCS or the hybrid inverter. So we all these things we are making in India. That means if we remove or eliminate battery cells, then more than 70-80% things we are doing here. And if we add lithium cells, then around 40-50% we are doing here. ओके, अंडरस्टूड। एंड वो कुसुम स्कीम का कुसुम स्कीम के अंदर जो है वो सर सोलर वाटर पंप्स हैं, नहीं तो दूसरा जो है वो PM सूर्य योजना है। तो हम PM सूर्य योजना में भी काम कर रहे हैं और चैनल डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क से भी काम कर रहे हैं, प्लस हम रेलवे के लिए काम कर रहे हैं, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट एजेंसीज के लिए काम कर रहे हैं, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के लिए काम कर रहे हैं, प्राइवेट सेक्टर के लिए काम कर रहे हैं। और कुसुम की बात करते हैं तो कुसुम में भी डिस्ट्रिक्ट स्टेट एजेंसीज, नोडल एजेंसीज इसमें सब्सिडीज देती हैं किसानों को, हम उसमें भी काम कर रहे हैं। और हम 3 HP, 5 HP, 7.5 HP के वाटर पंप्स के लिए चार्ज कंट्रोलर्स और कंप्लीट वाटर पंप कंट्रोलर सोलर बेस्ड लगाते हैं। ओके, तो मेरा क्वेश्चन था कि लास्ट ईयर के एग्जीक्यूशन से पिकअप लग रहा है इस बजट से या सर ये तो सर अगर हम ये कहें कि हमारे रेवेन्यू में 90% सोलर है, तो इसका मतलब अगर उसमें ग्रोथ है तो मतलब वो तो बाय डिफॉल्ट ही ग्रोथ है ना, तो ग्रोथ हो ही देगी। करेक्ट। इट इज सेल्फ एक्सप्लेनेटरी ना। ओके, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टैंड। यस, थैंक यू सो मच। Thank you. A reminder to all participants, you may press star and 1 to ask a question. The next question comes from the line of Jitesh Parmar, an individual investor. Please go ahead. हेलो सर, थैंक्स फॉर अगेन टेकिंग माय क्वेश्चन। सर मुझे पूछना था आपसे कि ये बैटरी सेगमेंट में एज अ सर्वोटेक हमारी स्ट्रेंथ क्या है? मतलब ये तो काफी सारी और कंपनीज भी है इस मार्केट में, तो वेयर डू यू सी आवर स्ट्रेंथ? इज इट लाइक डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क, प्राइसिंग, वेयर डज सर्वोटेक स्टैंड्स आउट? सर पहली स्ट्रेंथ जो है वो ये है कि ये हमारी कैप्टिव कंजम्पशन है, इससे बड़ी स्ट्रेंथ ही नहीं हो सकती। दैट मीन्स अगर आपको कुछ चीज़ चाहिए और आपके घर में उसकी कंजम्पशन है, एग्जांपल देता हूँ कि अगर आपने अपनी छत के ऊपर सब्जियां उगा ली और वो सब्जियां आप अपने घर में ही खा लेते हो और आपको कहीं बेचने की जरूरत नहीं है, तो सर इससे बड़ी तो कोई हो नहीं सकती। तो हमारी कैप्टिव कंजम्पशन अगर इतनी ज़्यादा है कि हम खुद के लिए कंज्यूम कर लेते हैं, तो सर इससे बड़ी तो स्ट्रेंथ नहीं हो सकती ना। तो हमारे लिए कोई प्राइस कॉम्पिटिशन नहीं है, कुछ नहीं है। उल्टा हमें फायदा यह है कि जो हम बना रहे हैं उसमें जो भी कॉस्ट को हम नीचे ला पा रहे हैं, उतना ही हमारा ग्रॉस प्रॉफिट पे उसका इम्पैक्ट आ रहा है, और ये आपको क्वार्टर 3 में दिखा भी होगा। सर तो ये जो 3 व्हीलर सेगमेंट में हम लोग मार्केट कर रहे हैं, दैट इज बियॉन्ड आवर कैप्टिव कंजम्पशन, दैट वी आर ट्राइंग टू एक्सपांड। Am I understanding it right? राइट, अब मैं बताता हूँ, वो कैप्टिव कंजम्पशन नहीं है, वो मैंने बोला पहले भी, वो एक नया सेगमेंट है। उस सेगमेंट में जो हम आ रहे हैं वो हमारे को ओवरऑल बिजनेस के अंदर उसका अभी जो पार्टिसिपेशन है वो किसी भी हालत में 10-15% से ज्यादा नहीं होगा। और उसके अंदर अगर प्रॉफिटेबिलिटी पे कुछ हिट भी है तो वो नई मार्केट को एक्सप्लोर करने के नाम पे, अगर हम अपनी कंपनी के कैश को बर्न नहीं करते और फिर भी कुछ प्रॉफिटेबिलिटी ले आते हैं, तो मुझे लगता है कि मार्केट को सीखने के लिए और रेवेन्यू में शेयर देने, मतलब रेवेन्यू में कंट्रीब्यूशन करने के नाम पे इट इज अ गुड डील। तो उसके प्रॉफिट पर कोई बहुत ज्यादा असर नहीं पड़ेगा ओवरऑल कंपनी की उस पे। लेकिन अगर हम वहां पर जम गए एज अ गुड सप्लायर, एज अ गुड आफ्टर सर्विस कंपनी, तो मुझे ऐसा लगता है कि हम एक दिन मार्केट को गवर्न कर पाएंगे। इस थॉट प्रोसेस के साथ उस मार्केट में एंट्री कर रहे हैं जो आने वाले टाइम में हमें एक ठीक ठाक सा प्लेयर बनाएगी, ऐसा सोचते हुए एंटर कर रहे हैं। ओके सर। सो दूसरा क्वेश्चन जो था वो स्लाइटली डिफरेंट था कि हमने अभी जो कॉन्ट्रैक्ट देखे स्पेशली रेलवे के साथ अराउंड सोलर,
सर उसमें पेमेंट टर्म्स कैसी होती है? मतलब आई वुड लाइक टू अंडरस्टैंड क्या ये हमारे वर्किंग कैपिटल को अफेक्ट करेगा? आई मीन हाउ डू यू सी दिस कॉन्ट्रैक्ट्स एंड व्हाट इज द टिपिकल ड्यूरेशन इन पेमेंट टर्म्स लाइक? और एक बहुत स्टैंडर्ड फार्मूला बता रहा हूँ। इंडिया के अंदर गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स में जो लोग भी काम कर रहे हैं उनके वर्किंग कैपिटल पे इसका हिट आता ही है। इसको कोई कुछ भी कहे, वो आता ही है। आप कितनी खूबसूरती से वो कंट्रोल कर लेते हो और कितना कम कर लेते हो, ये एक अलग बात है। बाकी कोई ये कहे कि इसका हिट नहीं आता तो सर वो गलत कह रहा है, मैं ऐसा मानता हूँ। ओके, दैट्स वेरी ऑनेस्ट आंसर, थैंक यू सर। सर लास्ट क्वेश्चन ये था कि आपने पिछले कॉल में एक बात कही थी कि we are in a phase where we are trying to become from 500 crore company to 2500 crore company. सर मुझे ये आपसे समझना था कि इसमें आप हमारा प्रोडक्ट मिक्स और कैपेबिलिटी को कैसे देखते हैं, जैसे मैनेजमेंट कैपेबिलिटीज वो सब कहाँ पे है, और हम कैसे देखते हैं कि ये अचीवमेंट हमारे लिए कब होगा, क्या डायरेक्शन में हम लोग जा रहे हैं? सर दो चीजें हैं इसमें। पहला तो ये है कि कुछ चीजें ऐसी हैं जो फ्यूचर की मैं बहुत ज्यादा डिस्क्लोज नहीं कर सकता, करेक्ट, पहली बात। लेकिन इसको दूसरे तरीके से देखते हैं कि अगर हमें फॉर एग्जांपल 10 किलोमीटर दूर जाना है और किसी रास्ते पे हैं और हमें मालूम है कि हमें कहाँ जाना है, हमने गूगल मैप लगाया हुआ है, तो बीच बीच में जो माइलस्टोन है वो आपको बताते हैं कि आप ठीक जा रहे हैं या गलत जा रहे हैं, करेक्ट। तो वो माइलस्टोन डिक्लेयर्ड है ऑलरेडी और वो मालूम है कि उन माइलस्टोन से हम कैसे पहुंचेंगे, एंड उन माइलस्टोन पे ऑलरेडी काम चल रहा है और बहुत सीरियसली चल रहा है। मैं आपको सिर्फ यही आश्वस्त करूंगा कि ये जो है ये सिर्फ और सिर्फ चाहत नहीं है, इस चाहत पे काम हो रहा है और सीरियसली काम हो रहा है। कितना पहुंच पाएंगे ये भगवान जानता है, क्योंकि उसके अलावा और कोई रोक नहीं पाएगा। ओके सर, थैंक यू वेरी मच फॉर द आंसर। Thank you. Participants, you may press star and one to ask a question. Participants, please press star and one to ask a question. The next question comes from the line of Gaurav Singh, an individual investor. Please go ahead. Hello, sir. जी Yes, sir. My another question for you was कि I've been following you a lot on LinkedIn and Instagram. So I guess yesterday you posted you attended the ASSOCHAM's event, I guess, for the budget union budget. So you have mentioned कि you're quite excited about the AI integration and the government's push on AI. So and you also mentioned कि Servotech भी AI integrate कर रहा है in the organization itself. So is it a inclusive thing या फिर आप ये थोड़ा business standard से भी कर रहे हो that you see some potential in it in the business terms as well for future and for more revenues? जी, हम लोग सभी डिपार्टमेंट में एआई का इम्प्लीमेंटेशन कर रहे हैं। हर डिपार्टमेंट में एजेंटिक लेवल पे हम लोग कर रहे हैं और टीम बनाई गई है फॉर ऑल डिपार्टमेंट, जिसमें एआई इंजीनियर्स रखे गए हैं और डेटा साइंटिस्ट के लोग मिलाए गए हैं जो फ्यूचरिस्टिक डैशबोर्ड्स पे काम कर रहे हैं, प्रेडिक्शंस पे काम कर रहे हैं, सैप को इंटीग्रेट किया जा रहा है, बहुत सारी चीज़ों पे काम चल रहा है, एचआर पे काम किया जा रहा है और मुझे दिख रहा है, लगता नहीं है, बहुत अच्छे रिजल्ट आ भी रहे हैं, बट उसका जो ओवरऑल ट्रांसफॉर्मेशन है वो आपको बहुत जल्दी देखने को मिलेगा। Okay, so ये तो inclusive हो गया about the business and the organization, but how is it going to help the business in the long term? नहीं समझा आपकी बात। मतलब सर ये तो भी inclusively you have integrated AI और you're on the way AI को integrate करने के लिए organization में, तो what is the long term vision कि ये किस तरीके से revenues को बढ़ा रहा होगा या is it a efficiency thing कि efficiency ही बढ़ रही है? सवाल बहुत अच्छा है आपका, लेकिन एआई का मतलब होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। यस सर। ये अपने आप में बोलता है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मतलब है कि ह्यूमन इंटेलिजेंस से तो कम है। अगर ह्यूमन इंटेलिजेंस किसी धंधे को बड़ा नहीं कर पा रही तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैसे कर लेगी? तो आप ये समझ लीजिए ये हमें हेल्प करेगा, काम तो हमें ही करना पड़ेगा सर। ये हमें सर मदद कर सकता, धंधा हमें बढ़ाना पड़ेगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से हम सिर्फ और सिर्फ अपनी मैन पावर की काबिलियत को इम्प्रूव कर पाएंगे, लेकिन स्ट्रेटेजी, थॉट, विजुअलाइजेशन ये सब मैनेजमेंट से आता है और ये सब प्रमोटर से और उन लोगों से आता है जो बीज बोते हैं कि कंपनी कहाँ जाएगी, वो हमें ही करना पड़ेगा सर। उस जिम्मेवारी को तो नहीं छोड़ सकते एआई पे, और हम उसके लिए बिल्कुल तैयार हैं और हम ही करेंगे। लास्ट क्वेश्चन फॉर यू वाज कि Servotech, since being a renewable and green energy company, you've been the green energy and renewable
market player for the longest time that I can remember. But abhi you have also acquired Hertz and Pixels. You have also like launched a subsidiary Servotech Sports, and then abhi the way maybe you have been venturing. तो अभी थोड़ा फोकस से पावर एंड सोल्यूशन से हट रहा है या फिर इज सर्वोटेक गोइंग टू अ न्यू डायरेक्शन एंड हाउ इज दैट बीइंग मैनेज्ड, क्योंकि ये सारी की सारी अलग अलग फील्ड्स है. तो सर बहुत अच्छा सवाल है आपका. मैं जवाब देता हूँ. सवाल आपका बहुत बढ़िया है, लेकिन आपके सवाल में ही मेरे जवाब छुपा हुआ है और वो चीज बड़ी क्लियर है. आप ध्यान से समझिए कि जितनी भी कंपनियां खरीदी गई हैं वो कोई भी कंपनी सर्वोटेक के अंदर मर्ज नहीं करी है, उसको सब्सिडरी बनाया है. सब्सिडरी बनाने का मतलब ये होता है कि जो कंपनी एक नई बनाई गई है ना तो उसकी कोर वैल्यू डिस्ट्रॉय हो और ना ही मेन कंपनी की कोर वैल्यू डिस्ट्रॉय हो और ना ही दो कंपनी की जो फोकस है वो खराब हो. तो जब अलग से एक कंपनी सब्सिडरी बनाई जा रही है तो उसका सीईओ अलग है, उसकी टीम अलग है, उनके प्रॉफिट सेंटर्स अलग हैं, उनके P&L अलग हैं, उनके कैश फ्लोज अलग हैं, उनको काम करने की डायरेक्शन देने वाले लोग अलग हैं. लेकिन सब्सिडरी नीचे लाने का मेन मकसद सिर्फ ये है कि जब हम आज के 10 साल बाद आगे जाके देखेंगे तो नहीं पता कि कौन से और एरिया ऐसे डेवलप हो जाएंगे जिसको उस दिन डेवलप करने के नाम पे हमें टाइम खराब करना पड़ेगा. तो क्यों नहीं आज उनके बीज बो दिए जाएं, आज क्यों नहीं उन चीजों पे काम कर लिया जाए बजाय इसके और बिना डिफोकस हुए. तो सर्वोटेक कहीं डिफोकस नहीं है, वो अपने काम पे आज भी उतनी शिद्दत से काम कर रहा है. जो दूसरे एरियाज हैं उनमें कंपनी की इन्वेस्टमेंट्स हैं, वो कंपनियां खरीदी गई हैं ताकि वो कंपनियां अपना काम वैसे ही करती चलें. सर्वोटेक ने एक नई कंपनी बना के खुद काम करना शुरू नहीं किया. अगर वहां हट्स एंड पिक्सल को एक्वायर करने की बजाय सर्वोटेक ने हट्स एंड पिक्सल बनाई होती और सर्वोटेक कहता कि मैं इस कंपनी को जीरो से बनाऊंगा, तो आप कहते मैं डिफोकस हूं. कंपनी ने नहीं बनाया, कंपनी ने एक्वायर किया है. और जितनी हिंदुस्तान की बड़ी बड़ी टॉप शॉट निफ्टी 50 की कंपनियां हैं वो ऐसा करती आई हैं. हम तो अनुसरण कर रहे हैं उनका, सीख रहे हैं उनसे और बड़े लोगों से सीख के हम उसको अप्लाई करने की कोशिश कर रहे हैं कि कंपनी का अम्ब्रेला बड़ा कैसे किया जाए, कैसे और ज्यादा प्रॉफिट अपने इन्वेस्टर्स को दिया जाए. अगर आपको लगता है ये गलत है तो मैं जरूर समझना चाहूंगा और उसको ठीक करना चाहूंगा. Okay, sir, completely fair. Okay, thank you. That was all from my end. All the best. Thank you. Participants, you may press star and one to ask a question. A reminder to all participants, please press star and one to ask a question. Participants, please press star and one to ask a question. Ladies and gentlemen, as there are no further questions for today, I would now like to hand the conference over to Mr. Raman Bhatia for the closing remarks. Thank you. Thank you for your questions and for the constructive discussion today. As we have outlined, our priority remains consistent execution, maintaining cost discipline, and strengthening the quality of our earnings. We appreciate your continued engagement and interest in Servotech, and we look forward to updating you as we progress in the coming quarters. Thank you and have a good day. Thank you. Thank you, sir. Ladies and gentlemen, on behalf of Servotech Renewable Power System Limited, that concludes this conference call. Thank you for joining us, and you may now disconnect your lines.